नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती कार्यक्रम संपन्न। मंत्री ईश्वर खंड्रे और रहीम खान ने भाग लिया। बीडर शहर के पापनाश मंदिर में नागपंचमी और सावन के पहले सोमवार की तैयारियां जोरों पर। कावेरी मुद्दे पर बीजेपी ने बेंगलुरु मैसूरू हाईवे बंद का आह्वान किया। ऑपरेशन हस्त किया तो कांग्रेस उठ नहीं पाएगी, कहा सीटी रवि ने। कर्नाटक में नए बीपीएल कार्ड जारी करने पर रोक, मौजूदा डेटा का सत्यापन किया जाएगा। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी तो सड़कों को लेकर मचा बवाल, आपस में भिड़े कांग्रेस और भाजपा के नेता। देश को बदनाम करना उनकी आदत, चीन के घुसपैठ वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर किया प्रहार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बीदर के कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती के अवसर पर शहर के रंग मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे और नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान रहे। इस अवसर पर एमएलसी अरविंद कुमार अल्डी सहित डीसी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नबसवन्ना, जिला पंचायत सीईओ शिल्पा एम मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंत्री ईश्वर खंड्रे और रहीम खान ने संबोधित किया। इस बीच रहीम खान ने कहा कि डी देवराज अरस के बाद सिद्धरामैया सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वहीं खंड्रे ने कहा कि आज देवराज अरस के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी जन्मदिन है। इस मौके पर जिले और तालुका स्तर के कांग्रेस नेता सहित स्कूल के छात्र छात्राएं सहित अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। मान्य डी देवराज अरस रवर 108ನೇ जन्म दिनाचರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನೇಕ ಜನರು। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರೇನು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿಬೇಕು। ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ। ದೇವರಾಜ ಅರಸರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು 1915ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20ಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ, ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ। 42ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಲೆ ಚಾವ್ ಚಳವಳಿ ನಡೀತದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ। ಸತತವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪದವಿ ಪಡಿತಾರೆ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। ಮೊದಲನೇ ದೇಶದ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 52ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಮಂತ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಹೆಸರು ಪಡಿತಾರೆ। ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। 71ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ 27 ಸ್ಥಾನಗಳು ಗೆದ್ದು 72ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ। ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತೇನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ
ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಜನ್ಮದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಅರವಿಂದ್ ನದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, CS ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಸುಮಾರಿದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಬರೀ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. कर्नाटक के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हमको कि पूरे देश में एक इतिहास बन गया है. गरीबों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए आ तरह सुमार ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ OBCನಲ್ಲಿ. OBC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು OBCನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು MLA ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, MLC ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ 2,000 ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು इडी निम मने के आपके पूरे घर को, पूरे परिवार को थोड़ा सा छोटा सा हेल्प कर सकते. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ जॉब की समस्या इರ್ತವೆ. सभी को जितने डिग्री करे हैं सभी मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज डिग्री जनರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ तो 3,000 रुपीज, कितना 3,000 रुपये मिलेगा आपको जब तक 2 साल तक आपको जॉब मिलने तक. सपोर्टिंग मनी 100% मिलेगा. तुम डिग्री करने के बाद 6 महीने तक जॉब को ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट तुमको 3,000 रुपीज पर मंथ आपको सपोर्टिंग पेंशन ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 3,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ 1,500. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है वी आर विथ यू एनी टाइम. ತಾವು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅವರು
ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ದೇವರಾಜ ಅಂದರೆ SC ST ಹರಿಕಾರರೆಂದೇ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಬಡವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಡ ಜನರು ಉಳ್ಳುವವರೇ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿದಂಥ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಕೂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನರೇಗಾ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ನರೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ದೇವರಾಜ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೂಲಿಗಾರರು ಕಾಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬದಲಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನರೇಗಾ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. बीदर में आज नागपंचमी और सावन के पहले सोमवार की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के पापनाश मंदिर में कल होने वाले विशेष पूजा आदि की तैयारियों को देखते हुए आज मंदिर में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे और मंदिर में भक्तों की एक बड़ी संख्या भगवान के दर्शन के लिए पहुंची है। मंदिर में कल आने वाले सैकड़ों भक्तों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। सावन के महीने में दूर दराज से जो भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पापनाश मंदिर में भी काफ़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ से आप जरा कतार को देखिए कि कितनी लंबी कतार में यहाँ पर भक्त अपने आराध्य के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। आप कहाँ से आए दर्शन के लिए? भालकी से आए। कैसा लगता है जब भी मंदिर आते और सावन का महीना है तो? हिंदी नहीं देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं भले ही भाषा वो समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, पर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर कर्नाटका टूरिज्म पुलिस से भी कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए आज तो सोमवार नहीं है, आज भी इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, तो कल तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसको लेकर क्या तैयारियाँ? टोटल जैसा श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, श्रावण मास से प्रारंभ होने से कंटिन्यू यात्री लोग कंटिन्यू से आते रहेंगे। जो सोमवार तो विशेष दिन रहेगा, सोमवार विशेष दिन रहने से हज़ारों से पब्लिक कंटिन्यू आते रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock से चालू रहेंगे, पब्लिक को कंटिन्यूसली कंटिन्यू रहते जाएंगे। जितने भी लोग आएंगे उनको और अलग अलग लाइन से लगाते रहेंगे। कंटिन्यू पब्लिक आते रहेंगे, इसी दर्शन कर लेते निकलते जाएंगे। ये श्रावण का विशेष होकर कंपलसरी जितने भी ये एरिया के जितने भी लोग हैं, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से पूरे के तरफ से लोग इधर यात्री लोग आते रहेंगे। लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान अभी? मिनिमम डेली एक 5000 से लेकर 10,000 तक लोग आएंगे विशेष दिन सोमवार के दिन। डेली तो रोटेशन में 2-3 हज़ार तो कंटिन्यू आते रहेंगे। जो नॉर्मल पब्लिक है डेली से रोटेशन आते रहेंगे मेन बोले तो। और सेंटर का जो सोमवार है सेकंड या थर्ड सोमवार तो मिनिमम 10,000 तक लोग आते रहेंगे। तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरी तैयारी आपकी? यस सभी तरफ से तैयारी है। विशेष दर्शन है, जनरल दर्शन है, सभी VIP दर्शन है, सभी अलग अलग लाइन से अलग अलग लोग आते हैं। तो श्रावण मास में डेली आते हैं इधर पापनाश के दर्शन के लिए। कभी और दूसरा दिन भी सोमवार आते हैं हम। श्रावण मास तो डेली आते हैं, अच्छा लगता है आने वो। हम बचपन से आते हैं। हाँ बहुत होती है। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने के कांग्रेस सरकार के फैसले के विरोध में राज्य भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग बंद का आह्वान किया। भाजपा नेता अश्वनाथ नारायण गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की कुरुवई फसल के लिए पानी छोड़कर राज्य के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और भाजपा के अन्य नेता आंदोलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कन्नड़ संगठनों और किसानों से आंदोलन में भाग लेने की अपील की। इस बीच कई गन्ना किसानों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने काबिनी जलाशय से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ जाने के विरोध में टी नरसीपुरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने से काबिनी अचुकट्टू क्षेत्र के किसान प्रभावित होंगे। तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने से कृष्णराज सागर KRS और काबिनी जलाशयों का स्तर तेजी से गिर रहा है।
विपक्षी दल के विधायकों को लुभाने की सत्तारूढ़ पार्टी की कथित कोशिशों को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सीटी रवि ने कांग्रेस को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और पार्टी से अच्छा प्रशासन देने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है और किसी भी दुस्साहस में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक रूप से कैसे जवाब देना है, हम जानते हैं कि ऑपरेशन हस्त कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कैसे करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। उन्होंने बेंगलुरु में पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से कहा। रवि ने कहा कि अगर कांग्रेस कुछ भी अनावश्यक करने की कोशिश करेगी तो वे चुप नहीं बैठेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो चुप रहेंगे। अगर हमने कुछ किया तो तुम उठ नहीं पाओगे। हालांकि भाजपा नेता ने 2019 में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों की उनकी पार्टी में शामिल होने को उचित ठहराया, क्योंकि भाजपा को 104 सीटें मिली थी और 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। रवि ने कहा कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को अच्छे पदों पर रख पाने की स्थिति में नहीं है। हम जानते हैं कि पार्टी कैसे बनानी है और इसकी सुरक्षा कैसे करनी है। हम अपने रास्ते में आने वालों को जवाब देना भी जानते हैं। अन्न भाग्य योजना के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए कर्नाटक सरकार कुछ समय के लिए बीपीएल कार्ड के लिए नए आवेदन जारी नहीं करेगी, क्योंकि अधिकारी मौजूदा कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा। शुक्रवार को बेंगलुरु में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि अधिकारियों ने 1 करोड़ से अधिक कार्ड धारकों को 5 किलो चावल के बदले प्रति व्यक्ति 170 रूपये ट्रांसफर किए। ऐसे 28 लाख कार्ड धारक हैं जो विभिन्न कारणों से अमान्य हैं, जिनमें बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना, परिवार में मृत्यु का अपडेट नहीं किया जाना या कि ई-केवाईसी नहीं किया जाना। इसके अलावा अन्य कारण शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें व्हाइट बोर्ड कारों पर आरटीओ से विवरण मिला है। कई बीपीएल कार्ड धारकों के पास लग्जरी कारें और घर और अन्य सुविधाएं हैं। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को भी मिला है। ये कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। हालांकि मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को उन वास्तविक लाभार्थियों के मुद्दों को सुलझाने का निर्देश दिया है जिन्होंने अपने आधार कार्ड को बैंक खातों से नहीं जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी परिवारों के मुखियाओं की पहचान करेंगे और उन लाभार्थियों को भारतीय डाक भुगतान बैंक खाते खोलने में सक्षम बनाएंगे जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। बेंगलुरु की एक सिविल और सत्र अदालत ने फैसला सुनाया कि पुस्तक वीरप्पन की गाथा राइज एंड फॉल भाग 1 कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने पत्रकार नक्खीरन गोपालन, रिपोर्टर शिव सुब्रमण्यम और अन्य को प्रवेश की अनुमति दी थी। कन्नड़ मैटिनी आइडल डॉक्टर राजकुमार को बचाने के लिए दूत के रूप में जंगल में गए, जिन्हें 2000 में वन डाकू वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था। कूस मुनिसामी वीरप्पन 36 साल से सक्रिय थे और उसने फिरौती के लिए बड़े राजनेताओं का अपहरण किया था। वीरप्पन ने 30 जुलाई 2000 को तमिलनाडु के ईरोड जिले के सत्यमंगलम तालुक के डोड्डा गजनूर स्थित एक फार्म हाउस से डॉक्टर राजकुमार और उनके 3 रिश्तेदारों का अपहरण कर लिया था। वीरप्पन की गाथा उदय और पतन भागवन तमिल में वीरप्पन विलन थाथम का अंग्रेजी संस्करण है, जो अक्टूबर 2020 में पी शिव सुब्रमण्यम द्वारा प्रकाशित एक प्रत्यक्षदर्शी खाता है। नक्खीरन गोपाल ने पी सुब्रमण्यम और शिव मीडिया पर रोक लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना करते हुए शहर की अदालत का रुख किया। पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित करने और वितरित करने से, जिसे 22 फरवरी 2023 को जारी किया जाना था, पुस्तक के विमोचन से एक दिन पहले उनके मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने शिव सुब्रमण्यम पर रोक लगाते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम एक पक्षीय आदेश पारित किया। पुस्तक के विमोचन से यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा चर्चा में बना हुआ है। शनिवार यानी 19 अगस्त को राहुल गांधी बाइक चलाकर लेह से पैंगोंग लेक पहुंचे। इस दौरान बाइक राइड करते हुए वो राइडर की वेशभूषा में उनकी कई तस्वीरें सामने आई। इस पर अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधते हुए लिखा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लद्दाख की तस्वीरें कितनी अच्छी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद। रिजिजू ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
राहुल गांधी ने यह भी दिखाया कि कश्मीर की घाटी में कैसे पर्यटन फल फूल रहा है। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अब श्रीनगर के लाल चौक पर शांतिपूर्वक फहराया जा सकता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा कि लेह और लद्दाख से धारा 370 हटाए जाने के बाद घटनाक्रम के मद्देनजर उसका प्रसार करने के लिए राहुल गांधी ने खुद घाटी की यात्रा की है। उनकी सड़क यात्रा की तस्वीरें देखकर प्रसन्न हैं। इस बाबत ट्वीट करते हुए कांग्रेस के सांसद मणिकम टेगोर ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान साल 2012 में आई थी। इस फिल्म के दृश्य के जरिए बताने की उन्होंने कोशिश की कि 10 साल पहले भी लद्दाख में वैसी ही सड़कें थी। बता दें कि राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाइक पर सवार होकर पैंगोंग लेक, नुब्रा घाटी और कारगिल जिले को कवर किया। हालांकि अब इस प्रवास को 4 दिन तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के दौरान चीन पर दिए उनके बयान को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी आदत हो गई है कि जहां भी जाते हैं वहां से देश को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप मोटर बाइक पर घूमे, लद्दाख गए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये क्या तरीका है कि जहां जाते हैं देश को बदनाम करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आगे कहा, न आप होमवर्क करते हैं, आपकी विदेश नीति पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी फाउंडेशन में कहां से पैसे आए थे, मैं बताना शुरू करूं क्या? चीन आप गए थे माता जी के साथ, मैं बताना शुरू करूं क्या? उन्होंने कहा कि आज लद्दाख की बात कर रहे हैं, याद है कैसे तिब्बत से आने पर इनके नाना ने दलाई लामा को भगाया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार का अतीत है, उनकी सरकार की ऑफिशियल लाइन रही लद्दाख से अरुणाचल तक सड़क नहीं बनानी है क्योंकि चीन इरिटेट होगा। आज पीएम मोदी ने बड़े बड़े हाईवे उस रास्ते पर बना दिए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लद्दाख की इंफ्रा बिजली के लिए सरकार रोज काम कर रही है और आज देखिए 38 लाख लोगों ने कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर है। उन्होंने सतना में शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी शरीफ, ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। 75 सालों में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने आपको दिए वादे पूरे किए हो। मध्य प्रदेश में एक मामा ने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया। मामा पर भरोसा मत करना, चाचा पर करना। केजरीवाल ने कहा कि आपका भाई बेटा चाचा आ गया है, मामा पर नहीं चाचा पर भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और रोजगार का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, मध्य प्रदेश में आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करेंगे। केजरीवाल गारंटी देने आया है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि केजरीवाल की गारंटी पूरी होगी, वरना सर कटा देगा। मध्य प्रदेश के लिए केजरीवाल ने दी है गारंटी, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली की गारंटी। नवंबर तक सभी बिजली के बिल माफ, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे, कच्चे टीचर्स को पक्का करेंगे। टीचर से केवल शिक्षण का कार्य करवाया जाएगा। गांव गांव मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। सभी का इलाज मुफ्त करेंगे। सभी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त होंगे। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की नई टीम बनाई है। इस नई टीम में शशि थरूर और सचिन पायलट को भी कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस लिस्ट को साझा किया है। इस लिस्ट में कुल 39 सदस्यों का नाम है। इस टीम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ए के एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। खड़गे ने नई टीम में कई नई महिलाओं को स्पेशल इनवाइट के तौर पर शामिल किया है। स्पेशल इनवाइट के तौर पर सुप्रिया श्राइन, प्रीनित शिंदे, फूलो देवी, नेताम, अलका लांबा, मीनाक्षी नटराजन को टीम में शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले तक संचालित कमेटी के साथ काम कर रहे थे, जिसका गठन सोनिया गांधी ने किया था। अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस नई कांग्रेस कार्य समिति का ऐलान किया है, उसमें भी पूर्व की समिति के मुकाबले में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की नई लिस्ट में 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद राहुल गांधी पहली बार लद्दाख गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि चिंता की बात है कि चीन जबरन भारत की जमीन को छीनते जा रहा है। यहां के लोगों ने मुझे बताया कि चीन की सेना लद्दाख की जमीन में घुस गई है और उनकी चारागाह की भूमि उनसे छीन ली गई है, लेकिन हमारे देश के पीएम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि लद्दाख में 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद यहां के लोगों से पूछ सकते। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले 3 सालों से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध चल रहा है, जिसे लेकर जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस घटना के बाद से चीन और भारत के संबंध और भी खराब हो गए। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के फैसलाबाद में यात्री बस में भयानक आग लग जाने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत और 15 व्यक्ति झुलस गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दुर्घटना उस वक्त हुई जब यात्री बस ने डीजल के ड्रम ले जा रही एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बस से बाहर निकाला। इससे कई लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकी। जियो न्यूज के मुताबिक बस में 35 से 40 लोग सवार थे और ये कराची से इस्लामाबाद जा रहे। रिपोर्ट में जिला पुलिस अधिकारी डॉक्टर फैयद के हवाले से बताया गया कि टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई। पिछले महीने की शुरुआत में भी इसी तरह पंजाब के राजनपुर जिले के फाजिलपुर इलाके में एक बस के पलट जाने से एक महिला और 2 नाबालिगों सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। वहीं इसी तरह की एक घटना में शनिवार को उत्तरी वजीरिस्तान के शवाल इलाके में हुई, जहां एक भीषण विस्फोट के बाद बस में सवार कई लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी द्वारा शनिवार को की गई गोलीबारी में इजराइल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हमले में शामिल संदिग्धों की तलाश की जा रही है और उसके लिए उत्तरी वेस्ट बैंक के एक अशांत क्षेत्र हवारा शहर के पास नाकाबंदी की गई है। बता दें कि हालिया समय में वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इजराइल की गोलीबारी में लगभग 180 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीन की तरफ से हुए हमलों में 27 लोगों की जान गई है। गोलीबारी की घटना ऐसे वक्त हुई जब बुधवार को वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 19 साल के एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। इजरायली डॉक्टर्स के मुताबिक घटनास्थल पर उन्हें 60 और 29 साल की उम्र के 2 इजरायली पुरुष जख्मी हालत में मिले थे। फिलिस्तीन के मेडिकल ऑफिसर्स ने बताया कि 19 साल के मोहम्मद अबू असब को बुधवार को उत्तरी वेस्ट बैंक के शहर नब्स के पास बालाटा शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान सिर में गोली मार दी गई। ये पता नहीं चल पाया है कि अभी अबू असब किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा था या नहीं। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। गदर 2 300 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। केक काटकर सनी देओल और अमीषा पटेल ने मनाया जश्न। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। 17 खिलाड़ियों को मिल सकता है टीम इंडिया में मौका। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। टाई फिस हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर का धंधा। मांग से आई जोरदार गिरावट से इंडस्ट्री पर संकट। फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती कार्यक्रम संपन्न। मंत्री ईश्वर खंडे और रहीम खान ने भाग लिया। बीदर शहर के पापनाश मंदिर में नागपंचमी और सावन के पहले सोमवार की तैयारियां जोरों पर। कावेरी मुद्दे पर बीजेपी ने बेंगलुरु मैसूरू हाईवे बंद का आह्वान किया। ऑपरेशन हस्त किया तो कांग्रेस उठ नहीं पाएगी, कहा सीटी रवि ने। कर्नाटक में नए बीपीएल कार्ड जारी करने पर रोक। मौजूदा डेटा का सत्यापन किया जाएगा। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी तो सड़कों को लेकर मचा बवाल। आपस में भिड़े कांग्रेस और भाजपा के नेता। देश को बदनाम करना उनकी आदत। चीन के घुसपैठ वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर किया प्रहार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।